Hey everyone, welcome to the Modern Indian History lecture, which is Nationalist Response in the Wake of World War II. इस चैप्टर में हम करंटली डिस्कस करने वाले हैं 1939 और उसके बाद के पीरियड को. Now during this particular period, the Second World War was going on. And in this Second World War, जो नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स था या नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Now we know that on 1st of September 1939, Germany attacked Poland. Now this is the starting of the World War II. Now what happened after 2 days? On 3rd of September 1939, Britain declared a war against Germany. And the British government of India declared India's support for the war. Now ब्रिटिश ने इंडिया का जो सपोर्ट था टुवर्ड्स दी वॉर वो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसमें खास बात जो थी, द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट वॉज कि ब्रिटिश डिड दिस विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन ओपिनियन. Now this created some tensions. Now what happened is the Congress or the Indian National Congress started discussing कि how the British Indian government could take unilateral action कि बिना कंसल्ट किए आप हमको एक वॉर का हिस्सा कैसे बना सकते हैं. लेकिन अगर हमको वॉर का सपोर्ट आपको हमारा चाहिए ही, तो उसके लिए आपको हमारे कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा. एंड INC गेव two basic conditions to cooperate in the war. What was the first one? That after the war, a constituent assembly should be convened to determine political structure of a free India. कि जैसे ही वॉर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाई जाएगी जो इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, फ्री इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगी. द सेकेंड वन वॉज दैट इमीडिएटली व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि एक जेन्युइन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को सेटअप किया जाए सेंटर में, ताकि इंडिया अपने आप को ईजिली सेल्फ गवर्न कर सके. नाउ व्हाट हैपेंड विद दिस कांग्रेस ऑफर? During this time, Lord Linlithgow was the Viceroy of India and he clearly rejected the complete offer. Now, there is this position that British wanted INC's cooperation regarding the World War II and the Congress offer was rejected. So, there was this meeting conducted at Wardha, which is currently in the state of Maharashtra. Now, Congress Working Committee in Wardha, it started discussing about different opinions. What they did was that whatever the Congress official position will be, that was adopted at this CWC meeting at Wardha. Now, the other people who are also present there, their opinion needs to be discussed. कि what were their opinions, कि वो क्या कह रहे थे, which includes Gandhi, Nehru, Subhash Chandra Bose and the other socialists. So let us discuss these people opinion during the CWC meeting at Wardha, कि what they actually thought. Let's start with Mahatma Gandhi. He was in a total dislike of the fascist ideology. Now fascist और fascism ये इटली में था ड्यूरिंग बेनिटो मुसोलिनी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वहाँ पर एक एज अ डिक्टेटर रूल कर रहा था. तो फासिज्म जो चीज़ है वो नाजिज्म की तरह ही है. सो ही वॉज इन अ टोटल डिसलाइक ऑफ इट एंड ही हेटेड दिस आइडियोलॉजी. सेकेंड थिंग वॉज दैट ही हैड अ सिंपैथी फॉर ब्रिटेन इन दिस वॉर, बिकॉज इनको लगा कि नाजिज्म और फासिज्म यानी जर्मनी, इटली एंड जापान, दे स्टार्टेड द अटैक और द वर्ल्ड वॉर सेकेंड टूवर्ड्स ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज. Third point was that he advocated an unconditional support to the allied powers. Now these countries which I am talking about, which is Britain, Russia, USA, जो ब्रिटेन की साइड जो कंट्रीज थी, पोलैंड, these were the allied powers. और इनके अगेंस्ट में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में थे एक्सिस पावर, विच एक्सिस पावर के अंदर जो कंट्रीज थी, दे वर जर्मनी, इटली एंड जापान. नाउ व्हाट गांधी सेड दैट कि हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, कोई भी हमारी कंडीशन नहीं होगी, बिकॉज ही थॉट दैट ब्रिटेन वॉज बीइंग अटैक्ड बाय जर्मनी, इटली एंड जापान. फाइन. नेक्स्ट वॉज that he made a clear distinction between the democratic nations of Western Europe. He said कि जो Western Europe की जो countries हैं वो democratic nations हैं, और Germany and Italy, they were controlled by totalitarian Nazis and fascist government. So he was towards the democratic nations.
नेक्स्ट पॉइंट वॉज दैट ही वॉज नॉट विलिंग टू एम्बेरस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वॉर, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने या इंडिया ने उनका सपोर्ट नहीं करा टूवर्ड्स द डेमोक्रेटिक नेशन. And last one was that he started favoring Nehru's position, which we will be discussing at a later point, ठीक है, and which was adopted by CWC at the later stage. So these are the different opinions of Mahatma Gandhi during this particular period of 1939. Next is the opinions of Subhash Chandra Bose. Now, S.C. Bose with other socialists like Acharya Narendra Dev and Jayaprakash Narayan also gave their opinion regarding this particular situation. They said कि ना तो हमें सिंपैथी है जर्मनी की तरफ, इटली की तरफ, और ना ही हमें सिंपैथी है ब्रिटेन और उसके दोस्तों के साथ. सो वी आर नीदर टूवर्ड्स द एलाइड पावर्स नोर वी आर टूवर्ड्स द एक्सिस पावर. नेक्स्ट इज दैट इट इज़ एन आइडियल टाइम टू लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाकर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं ताकि हम इंडिया को कंप्लीटली फ्री कर सकें. ही ऑल्सो थॉट दैट कि जो वॉर जो लड़ा जा रहा है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड विच वॉज बींग फॉट, इसके दोनों साइड पे जो कंट्रीज हैं दे बोथ आर इम्पीरियलिस्ट्स. ठीक है, ये सभी अपनी कॉलोनियल पोजेशंस यानी कॉलोनीज के लिए लड़ रहे हैं ताकि ये और ज़्यादा टेरिटरीज को गेन कर सकें. तो हमें किसी भी साइड के साथ नहीं होना है. अदर देन हिम we will discuss the opinions of Jawaharlal Nehru. Now, first point was that he was not ready to accept the opinions of either Gandhi or the socialist. कि ना तो मैं गांधी जी की बात मान रहा हूँ इस चीज़ में, कि बिकॉज गांधी वांटेड कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट कर दें, सोशलिस्ट वांटेड कि हम किसी भी तरफ ना हों. There was clear in his mind about the differences between the democratic values and fascism. Now this is correct regarding Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi as well. They both understood कि democratic values और fascism और nazism की values ये दो अलग अलग ideologies हैं. Now he believed that justice was on the side of Britain, France and Poland. He also believed that, Gandhi also believed that, but they were imperialist powers as well. So he advocated कि इंडियन पार्टिसिपेशन नहीं होगा वॉर के अंदर जब तक इंडिया को कंप्लीटली फ्री ना किया जाए, और इस चीज़ की हम कोई भी एडवांटेज अलग से नहीं लेंगे. सो ही सेड कि इंडिया पार्टिसिपेट तभी करेगा वॉर के अंदर जब इंडिया खुद फ्री हो जाएगा, और हम इस सिचुएशन का जो है एडवांटेज नहीं लेंगे. दिस एडवांटेज वाज सजेस्टेड बाय सुभाष चंद्र बोस. सो दीज आर डिफरेंट ओपिनियंस विच आर गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड. नाउ व्हाट विल हैपन इज, इस CWC जो वार्दा में जो मीटिंग हो रही है, इट डिसाइडेड that we will condemn the fascist aggression. जो नाजिज्म ने यानी जर्मनी इटली ने जो इस लड़ाई को शुरू करा है, हम उसको कंडेम करते हैं, उसकी घोर निंदा करते हैं. Second was that India could not be a party to a war being fought for democratic freedom. कि इंडिया उस वॉर का पार्टी कैसे बन सकता है जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, और इंडिया को खुद ये डेमोक्रेटिक फ्रीडम डिनाई की जा रही है थ्रू द ब्रिटिशर्स. इट ऑल्सो सेड दिस CWC रिजोल्यूशन, इस मीटिंग में बोला गया कि ब्रिटेन को ये प्रूव करना होगा अपने इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज को एंड करने पर, अपनी कॉलोनीज को कंप्लीटली फुल डेमोक्रेसी के साथ एस्टेब्लिश करने के बाद ब्रिटेन को ये प्रूव करना होगा दैट इट इज टुवर्ड्स द गुड साइड. The fourth point was that the government should declare its war aims soon. कि why the British government is fighting, what are the aims of the British government, and how the principles of democracy were to be applied to India after the war. कि हम कैसे लेकर आएंगे इंडिया में डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बतानी होंगी. सो दीज वर, क्विकली रिमेंबर दीज 4 CWC रिजोल्यूशन. ये कंडक्ट किया गया था, ये पास किया गया था एट द CWC मीटिंग एट वार्दा आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. क्लियर. नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स कि whatever this is happening starting from the civil disobedience movement of 1930, let us try to recap everything. After that, there was Haripura session of February 1938 in which Subhash Chandra Bose was the president. Again in 1939 Tripuri session, Subhash Chandra Bose
After that, Rajendra Prasad was the president. After March 1939, Subhash Chandra Bose resigned from the INC presidency, and there was formation of the forward bloc, which we discussed in the earlier chapters. After that, Subhash Chandra Bose gave a call for a all India प्रोटेस्ट एज वेल, तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था, बैन हुआ था अगस्त 1939 में. एंड आफ्टर दैट द वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्टेड एंड INC गेव एन offer or two conditions to Viceroy regarding the joining or the cooperation in the World War II. And then came the CWC वार्दा मीट एंड द रिजोल्यूशन, द 4-point resolution जो हमने अभी स्टडी करा है वो पास हुआ था. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग in the modern Indian history period from March 1930 to 1939. अब CWC वार्दा मीट ने अपना रेजोल्यूशन पास कर दिया. नाउ व्हाट इज द गवर्नमेंट एटीट्यूड रिगार्डिंग दिस? व्हाट इज द गवर्नमेंट थिंकिंग? द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट वाज कंप्लीटली इन अ नेगेटिव सेंस, कि गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्स था वो कंप्लीटली नेगेटिव था. दैट इट डिड नॉट वांट कि INC ऐसे 2 कंडीशंस रखे, तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी. Second was on 17th October 1939, Viceroy Linlithgow he gave a statement. एंड उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग को, प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट यूज करने की कोशिश करी, बिकॉज ब्रिटिश की ये पुरानी पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल. Next point was that the government refused to define the British war aims. So if you remember, अगर आपको याद हो, CWC मीटिंग एट वार्दा, उसमें ये बोला गया था, रिजोल्यूशन में ये बोला गया था कि ब्रिटिश को अपने वॉर एम्स बताने पड़ेंगे, वाई इट इज़ फाइटिंग दी वॉर. और ब्रिटिश ने साफ मना कर दिया कि हम अपने वॉर एम्स को नहीं बताएंगे. बट द गवर्नमेंट सेट अप ए कंसल्टेटिव कमेटी जिसकी एडवाइस ली जाएगी जब रिक्वायर्ड होगी. तो ये एक बस बात को फिलअप करने की गवर्नमेंट की एक कोशिश थी, एक पॉलिसी थी, बट इट हैड नथिंग टू डू विद सब्सटेंशियल थिंग और द सिचुएशन विच वॉज हैपनिंग. तो कोई कंप्लीट सब्सटेंशियल चीज़ें तो हो नहीं रही थी. सो दिस इज वॉट वॉज हैपनिंग. Next was in May 1940 a draft revolutionary movement ordinance was passed कि इस सिचुएशन का INC कोई फ़ायदा ना उठा के कोई प्रोटेस्ट ना कर दे, कोई स्ट्राइक ना कर दे, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए पहले से ही एक ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट तैयार करा गया जिसका नाम था रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑर्डिनेंस. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट वॉज इन May 1940. नेक्स्ट वी विल सी कि एक बार CWC मीटिंग होती है वार्दा में, उसके बाद गवर्नमेंट का एटीट्यूड पता लगता है विच वॉज कंप्लीटली नेगेटिव. देन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी अगेन कम्स टू मीट एंड नाउ दिस मीटिंग इज ऑन 23rd of October 1939. अब इस मीटिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होती हैं. नाउ यू हैव टू रिमेंबर 23rd October 1939 मीटिंग में, CWC मीटिंग में क्या डिस्कस होता है? नंबर 1, दैट दे रिजेक्टेड द वाइस रीगल स्टेटमेंट एज अ रीइटरेशन ऑफ द ओल्ड इंपीरियलिस्ट पॉलिसी. कि वॉइसरॉय लिनलिथगो ने जो एक स्टेटमेंट पास की थी ऑन 17th October, उसको पहले तो रिजेक्ट करा और ये बोला गया कि भाई ये आपकी जो पुरानी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल उस जैसी है एंड वी डू नॉट वांट दैट. सेकंड, इस मीटिंग में डिसाइड करा गया कि वॉर में सपोर्ट नहीं किया जाएगा बिकॉज ब्रिटिश ने ना तो वॉर एम्स बताए ना कांग्रेस की कंडीशंस को एक्सेप्ट करा. थर्ड वॉज कि जो प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो मिनिस्ट्रीज को सेटअप कर रखा था अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्लीज पे अटेंशन, 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविंसेस में जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी जो 1937 में बनी थी. अब 1939 में उन मिनिस्ट्रीज ने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, प्रोविंसेस में से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? These are the government attitude which is happening during this particular time. इस एटीट्यूड के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट की जो कंडीशंस हैं उनके अगेंस्ट में, उसकी फंक्शनिंग के अगेंस्ट में CWC वार्दा मीट होती है. एंड देन व्हाट हैपन्स इज कि जो वाइसरॉय लिनलिथगो की जो स्टेटमेंट थी 17th October 1939 की, अब उस स्टेटमेंट के ऊपर डिबेट चलने लगता है कि यार व्हाट इज दिस
Viceroy doing or the British India government doing? So people thought कि अगर Viceroy and the British Indian government if they are not agreeing to the INC demand तो क्या एक immediate mass struggle को शुरू करना चाहिए, because British तो agree कर नहीं रहे हमारी conditions पर. But at this point Mahatma Gandhi and his supporters were not in favor of a immediate mass struggle. ठीक है, they were not ready to use this situation. Now there must be some reason, right? There must be some reason कि why Mahatma Gandhi was not in favor of a immediate mass struggle after the Viceroy Linlithgow statement of 17th October 1939. What were the reasons? Number one reason was that the Allied cause was just. Mahatma Gandhi believed that Britain, फ्रांस एंड द अदर कंट्रीज विच वर द अलाइड पावर्स, उनका लड़ाई जो वो कर रहे हैं, जिन रीजंस की वजह से वो लड़ाई कर रहे हैं, वो जस्ट है. इट इज कंप्लीटली फाइन. सेकेंड वॉज दैट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन 1939-40 देर वॉज कम्युनल सेंसिटिवनेस एंड राइट्स इशू दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड द कांग्रेस नाउ दे वर ऑल फाइटिंग, और कम्युनल एक इशू बन चुका था, कम्युनल सेंसिटिव इशू बन चुका था. तो महात्मा गांधी वांटेड मास स्ट्रगल, राइट? तो उसमें तो हिंदूज, मुस्लिम्स एंड एवरी सेक्शन ऑफ इंडिया विल बी यूटिलाइज्ड, राइट? तो इस वजह से उन्होंने शुरू नहीं करा. थर्ड वॉज दैट द आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आईएनसी के अंदर खुद लड़ाइयाँ चल रही थी, करप्शन चल रहा था, बोगस मेंबरशिप थी. तो वो कंप्लीटली आईएनसी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो केओस में थी, वो खुद ठीक नहीं थे. फोर्थ वन वॉज दैट द मासेस वर नॉट रेडी. महात्मा गांधी का इंट्यूशन इस पॉइंट पे कहता था कि द मासेस वर नॉट रेडी फॉर अ मास स्ट्रगल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. व्हाट हैपन नेक्स्ट इज कि पहले स्टेटमेंट पास होती है, महात्मा गांधी कहते हैं हम इमीडिएट मास स्ट्रगल नहीं करेंगे. देन कम्स द वाइसरॉय लिनलिथगो स्टेटमेंट of January 1940. Now we have entered 1940 and in this 1940 Linlithgow said, वो एक statement देते हैं, and what is that basic statement is that we will provide a dominion status. See, a dominion status is कि इंडिया जो है वो अपने आप को सेल्फ गवर्न करेगा, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहकर. क्या इंडिया कभी भी डोमिनियन बना था? यस. 1947 में इंडिया वॉज ग्रांटेड डोमिनियन एंड 1950 में जब उसका इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन पास होता है और इंडिया कंप्लीटली फ्री होता है, इस टाइम पीरियड के बीच में 47 to 50 इंडिया वॉज अ डोमिनियन. इट मीन्स इट वॉज अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, लेकिन इंडिया अपने आप को सेल्फ गवर्न कर रहा था. लिनलिथगो की स्टेटमेंट ऑफ जनवरी 1940 सेज दैट कि वी विल प्रोवाइड अ डोमिनियन स्टेटस ऑफ वेस्टमिंस्टर वैरायटी, कि इंग्लैंड का जो सिस्टम है, लेजिस्लेचर का सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव का सिस्टम है, वेस्टमिंस्टर मॉडल उसको बोलते हैं इंग्लैंड के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, उस की तरह हम एक डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे आफ्टर द वॉर. और यही ब्रिटिश जो पॉलिसी है, यही उसका गोल है इन इंडिया. सो दे कंप्लीटली एंड एक्सप्लिसिटली सेड कि इंडिया विल बी प्रोवाइड द डोमिनियन स्टेटस. नाउ अगेंस्ट दिस व्हेन दिस स्टेटमेंट वाज पास्ड, आफ्टर दैट देयर वाज वन मोर सेशन. नहीं, कालिया वाला सेशन नहीं था, इट वॉज द रामगढ़ सेशन ऑफ मार्च 1940. नाउ रामगढ़ इज बेसिकली द प्लेस लोकेटेड इन द करंट स्टेट ऑफ झारखंड. प्लीज रिमेंबर दैट. तो रामगढ़ सेशन आ चुका है, इससे पहले CWC मीटिंग हो चुकी है वारदा में. नाउ रामगढ़ सेशन ऑफ INC ऑफ मार्च 1940. नाउ फर्स्ट थिंग इज हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन. INC president was Maulana Abul Kalam Azad. And what did Congress decided? Congress declared that people of India would accept nothing short of complete independence, because if we remember कि वॉइसरॉय की जो स्टेटमेंट थी उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी 1940 में, एंड मार्च 1940 में INC सेट कि इंडिया को तो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए. सो वन मोर थिंग वॉज पास्ड. What was that? कि everyone at the meeting agreed that कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक बैटल शुरू करना चाहिए, एंड बैटल कब शुरू होगा, किस फॉर्म में शुरू होगा, ये सब गांधी जी खुद डिसाइड करेंगे. नाउ इट वॉज ऑल अप टू गांधी. क्या मार्च 1940 में समथिंग एल्स हैपेंड? यस, यू हैव टू रिमेंबर जब रामगढ़ सेशन हुआ था, ठीक है, तो उसमें जयवीरू भी थे
और उसमें गब्बर सिंह भी था। तो जयवीरू को तो हमने डिस्कस कर लिया, दी आईएनसी। अब थोड़ा सा गब्बर सिंह को भी देखते हैं। मार्च 1940 में देर वॉज वन मोर सेशन, इट वॉज द मुस्लिम लीग सेशन ऑफ मार्च 1940। दिस सेशन वॉज हेल्ड एट लाहौर and what was discussed during this session? A Pakistan resolution was passed. So Pakistan resolution was passed in March 1940 in the Muslim League session. This resolution talked about कि जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड या मेजोरिटी एरियाज हैं नॉर्थ वेस्ट के अंदर और ईस्ट के अंदर, उन सबको हम एक ग्रुप में बना देते हैं, ठीक है। उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं और जो उनके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, जो यूनिट्स होंगी, वो फ्री रहेंगी, ऑटोनोमस रहेंगी। तो जहां पर भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया के ईस्ट में, उन एरियाज को इकट्ठा करें, उनको ग्रुप बनाएं और उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करें। अदर देन दैट कि इंडिया में जहां जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज में हैं उन एरियाज में क्या किया जाए, इनको एडिक्वेट सेफगार्ड्स दिए जाए, इनको प्रोटेक्शन दी जाए कि माइनॉरिटीज के साथ मेजॉरिटी कुछ गलत नहीं कर रही है। दिस इज व्हाट वाज इन द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। प्लीज रीड दिस केयरफुली राइट नाउ, ठीक है। राइट अवे रीड दिस वेरी वेरी केयरफुली कि मार्च 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था और उसमें किस चीज़ की डिमांड की गई थी। सो दिस वाज द Pakistan resolution, also you can call it the Lahore resolution. Now this everything is happening in 1940. So what is happening in the World War II? अब सिचुएशन वो 1 सितंबर 1939 वाली नहीं है जहां पर जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक करा था। सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है। What is that? Now Germany, which was part of the Axis power with Italy and Japan, they started attacking different Western European countries, including they started attacking Holland, they started attacking Belgium और फिर फ्रांस। तो इन सभी कंट्रीज पे जर्मनी ने अपना फ्रंट ओपन कर रखा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। जब ये कंट्रीज अब धीरे धीरे लॉस में जा रही थी, दे वर लूजिंग द वॉर, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंग्लैंड को बेसिकली ये लगा कि नहीं, अब मुझे थोड़ा सा कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो क्या मुझे एक इंडियंस के साथ या ब्रिटिश इंडियंस के साथ क्या मुझे एक थोड़ा सा पैसिफाई हो जाना चाहिए, थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए। और उनके कोऑपरेशन के लिए वो क्या कह रहे हैं, आई शुड गिव अ न्यू प्रपोजल टू देम। सो न्यू प्रपोजल वॉज सेंट टू इंडिया। नाउ दिस न्यू प्रपोजल इज कमिंग बिकॉज जो इंग्लैंड वाली जो साइड है, विच इज़ द ब्रिटेन वाली जो साइड है, द एलाइड पावर्स, नाउ दे आर लूजिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड ब्रिटेन को अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए ही चाहिए क्या, द कोऑपरेशन फ्रॉम द इंडियन साइड। दिस प्रपोजल केम टू इंडिया इन अगस्त 1940, क्योंकि मार्च 1940 में रामगढ़ सेशन हो चुका है, मार्च 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास हो चुका है। लॉर्ड लिनलिथ को जो वॉइसरॉय है इंडिया के, ही गेव एन ऑफर विच इज नोन एज द ऑगस्ट ऑफर, ठीक है। नाउ दिस ऑफर केम टू इंडिया। नाउ व्हाट हैपन इज अंडर दिस ऑफर अ डोमिनियन स्टेटस एज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया। फिर अगेन सेम बात रिपीट कर रहे हैं जो स्टेटमेंट में रिपीट की थी कि इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। सेकंड कि वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस रहेंगे, हम उसको एक्सपैंड कर देंगे और उसमें एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस रहेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की जाएगी आफ्टर द वॉर जहां पर मेनली इंडियंस वुड डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस लाइन अगेन। इसमें एक वर्ड है, कैन यू आइडेंटिफाई दैट वर्ड? सेटिंग अप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर वेयर मेनली इंडियंस, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस नहीं, मेनली इंडियंस डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए था, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस या ऑल इंडियंस होना चाहिए था, बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फॉर इंडिया। तो हु विल डिसाइड? इंडियंस शुड डिसाइड। तो अगस्त ऑफर में भी कुछ अच्छी बातें अभी तक हमको दिखाई नहीं दे रही हैं। अगेन द सेम डोमिनियन स्टेटस इज बीइंग पास्ड। वॉइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बढ़ा दिया, उसमें मेजॉरिटी रख दी, जिससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं।
थर्ड, मेनली इंडियंस डिसाइड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप होगी। एंड नेक्स्ट वाज नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटीज। नाउ यहाँ पर जो गेम प्ले है ब्रिटिशर्स का अगस्त ऑफर में, लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या करा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया जा सकता जब तक माइनॉरिटीज का कंसेंट या एग्रीमेंट नहीं होगा। नाउ माइनॉरिटीज को एक प्रकार से वीटो पावर मिल चुकी है यहां पर कि भाई जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे जब तक वो चीज आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द अगस्त ऑफर। नाउ व्हेन दिस अगस्त ऑफर ऑफ 1940, हमेशा जब भी अगस्त ऑफर को बोलो तो उसके साथ अगस्त 1940 जरूर बोलो, इससे वो चीज याद रह जाएगी। अगस्त 1940 ऑफर के अगेंस्ट में कुछ रिप्लाईज आए। व्हाट वर दोज रिप्लाईज? जवाहरलाल नेहरू सेड दैट डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज डेड एज अ डोर नेल, कि भाई एक जो कील होती है, डोर नेल होता है, वो अब डोर नेल, वो जो नेल है वो डोर में है, वो किसी और काम का नहीं है। तो डोमिनियन स्टेटस का कंसेप्ट भी अब डेड हो चुका है। बार बार आप डोमिनियन स्टेटस हमें ना दें, वी वॉन्ट कंप्लीट और फुल इंडिपेंडेंस। सेकेंड जो आइडियाज थे वो थे महात्मा गांधी के। ही सेड कि जो अगस्त ऑफर में आपने जो डिक्लेयर करा है कि हम माइनॉरिटीज़ को वीटो दे देंगे, हम सिर्फ आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, इससे जो है नेशनलिस्ट एंड द ब्रिटिश रूलर्स के बीच में एक वाइड गल्फ हो गया है, उनके बीच में अब गैप आ गया है। थर्ड वॉज रिगार्डिंग द मुस्लिम लीग। नाउ मुस्लिम लीग वेलकम्ड द वीटो अश्योरेंस की हमको तो वीटो पावर मिल गई, बट दे ऑल्सो सेड दैट कि आप चाहे कोई भी ऑफर लेकर आ जाएं, पार्टीशन वॉज दी ओनली सॉल्यूशन टू दी डेडलॉक। ये पार्टीशन की बात उन्होंने कहीं ना कहीं एक इम्प्लिसिट रूप में पाकिस्तान रेजोल्यूशन में कह दी थी। Now this Pakistan resolution, of course you remember Pakistan resolution कब आया था? It was in March 1940 of Lahore session, correct? So these were the three opinions which were expressed by Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi and the Muslim League. Now let us try to evaluate, ठीक है, एक थोड़ा सा चेक करते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो ने या वॉइसरॉय लिनलिथगो ने जो ये ऑफर दिया था अगस्त ऑफर ऑफ 1940, एक बार इसको इवेल्युएट करते हैं कि इसमें क्या क्या था। नंबर 1, द कांग्रेस डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंसीडर्ड, कि ठीक है कांग्रेस बार बार कह रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाई जाए, इस डिमांड को मान लिएगा, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट वॉज An inherent right of Indians to frame their own constitution was recognized, कि भले ही मेनली इंडियंस लिखा हो बट एक डिमांड तो मान ली गई कि इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। एंड थर्ड वॉज कि डोमिनियन स्टेटस अब बिल्कुल टेबल पर रखा है, एज अ ऑफर रखा है, क्योंकि पहले तो इन्होंने डोमिनियन स्टेटस देने को भी मना करा था। नाउ अब डोमिनियन स्टेटस अगर टेबल पर रखा है तो अब आईएनसी एंड द इंडियन नेशनलिस्ट वर डिमांडिंग द नेक्स्ट लेवल विच वॉज द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो दिस वॉज द थिंग विच वॉज गोइंग ऑन। नाउ अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें कि जो भी अगस्त ऑफर में जो बातें की गई थी क्या उनको इम्प्लीमेंट किया गया? यस, दे वर इम्प्लीमेंटेड। नंबर 1, जुलाई 1941 में वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करने की बात थी और उसके अंदर इंडियंस को लाया गया विद अ मेजोरिटी ऑफ 8 आउट ऑफ 12। सेकेंड थिंग वॉज कि जो डिफेंस, फाइनेंस एंड होम, इस टाइप के जितने भी जो मिनिस्ट्रीज थी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास रखा गया। एंड थर्ड वॉज कि एक नेशनल डिफेंस काउंसिल सेटअप की गई एंड इट वॉज ऑफ प्योरली एडवाइजरी फंक्शंस, कि वो इंडिया को डिफेंड करने के लिए, वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए इस काउंसिल को बनाया गया था। तो रिमेंबर, नेशनल डिफेंस काउंसिल वॉज विद प्योरली एडवाइजरी फंक्शंस। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। Now towards the end of 1940, the Congress once again asked Gandhi to take command. अब ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? Because किसी भी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट तो हो ही नहीं रही है, ठीक है, बिकॉज इंडियंस वॉन्ट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, द ब्रिटिशर्स वर गिविंग अस डोमिनियन स्टेटस एंड सिचुएशन आज भी वहीं की वहीं थी। तो व्हाट
कांग्रेस सेड टू गांधी कि प्लीज आप कमांड लीजिए और आप बताइए कि हमको करना क्या। गांधी सेड कि मैं कंप्लीट मास स्ट्रगल तो लॉन्च नहीं करूंगा, बट आई विल स्टार्ट अ लिमिटेड सत्याग्रह ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस बाय अ फ्यू सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स इन एवरी लोकेलिटी, कि कुछ कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा इंडिविजुअल बेसिस पे और एक लिमिटेड लेवल का सत्याग्रह शुरू करा जाएगा। दिस लिमिटेड लेवल सत्याग्रह इज नोन एज द individual satyagrah. Please remember that this is the individual satyagrah. Now let us discuss what are the targets of individual satyagrah, कि अगर individual satyagrah हमें करना भी है तो उसके अंदर हमारे टारगेट्स क्या होने वाले हैं। नंबर 1 was to show that the national patience was not due to weakness, कि भले ही इंडिया ब्रिटिश का वॉर में सपोर्ट नहीं कर रहा है, भले ही इंडिया एक मास स्ट्रगल नहीं कर रहा है, बट हमारी शांति को कमज़ोरी ना समझा जाए, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए, ठीक है, क्या लॉन्च किया गया, इंडिविजुअल सत्याग्रह। सेकेंड वन वॉज टू एक्सप्रेस पीपल्स फीलिंग दैट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द वॉर। इंडिविजुअल सत्याग्रह के थ्रू ये दिखाया जाए दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर नॉट इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। Next one was that people made no distinction between Nazism and the autocracy that ruled India, कि इंडियन पीपल के लिए इंडिविजुअल सत्याग्रह में ये शोकेस किया जाए कि हमारे लिए जर्मनी का नाजिज्म, इटली का फासिज्म एंड इंडिया के अंदर जो ऑटोक्रेटिक रूल जो चल रहा है हमारे लिए सब बराबर हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। फोर्थ वन वॉज to give another opportunity to the government to accept the Congress demands peacefully, नहीं तो हम मास स्ट्रगल को लॉन्च कर देंगे, कि ये आपके पास एक लास्ट चांस है कि आप इंडिविजुअल सत्याग्रह की सिचुएशन को समझे और कांग्रेस की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लें। नाउ दीज वर द 4 टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रहिस्ट। Now, Vinoba Bhave was the first to offer the individual satyagrah and the second satyagrahi was Jawaharlal Nehru. You have to remember these as objective points ना, objective points की तरह इनको याद रखो। Vinoba Bhave was the first one, Jawaharlal Nehru was the second one. Second point was कि by May 1941 25,000 people had been convicted for individual civil disobedience, यानी limited सत्याग्रह के अंदर भी लगभग 25,000 लोग कन्विक्ट किए जा चुके थे बाय 1941। तो ये तो अपडेट्स हैं रिगार्डिंग द इंडिविजुअल सत्याग्रह। नाउ व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द सत्याग्रह ड्यूरिंग द इंडिविजुअल सत्याग्रह, कि हम डिमांड क्या करने, सी वी हैव डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स कि हमको क्या पाना है। हम ब्रिटिशर्स से डिमांड क्या कर रहे हैं। नंबर 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट दी वॉर थ्रू एंटी वॉर डिक्लेरेशन, कि हम एक एंटी वॉर डिक्लेरेशन दे रहे हैं और हमें क्या चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिकॉज ड्यूरिंग द वॉर ना ब्रिटिश ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा दिया था कि लोग स्पीचेस ना दें, लोगों को डिस्कस ना करें, चीज़ें फैले ना, कोई भी लोग प्रोटेस्ट ना करे। सेकेंड डिमांड ऑफ द सत्याग्रहीज वुड बी दैट कि एक सत्याग्रही जो होगा लाइक विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर्स, वो विलेज टू विलेज मूव करेंगे एंड जब भी सभी विलेजेस में ये बातें डिस्कस हो जाएंगी, डिमांड्स डिस्कस हो जाएंगी, ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो जाएंगे, एवरीवन विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स दिल्ली। एंड जो दिल्ली चलने वाली जो मार्च की बात थी, दिस इज नोन एज द दिल्ली चलो मूवमेंट। ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर, पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह आता है, उसके बाद सत्याग्रही की डिमांड आती हैं एंड देन एवरी सत्याग्रही विल देयर सपोर्टर्स विल दे मूव टुवर्ड्स दिल्ली एंड दिस इज नोन एज द दिल्ली चलो मूवमेंट। क्लियर? नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। ठीक है, जर्मनी इज कॉन्स्टेंटली अटैकिंग हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, तो एवरीवन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बट न्यू थिंग विच हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड वो, जब ये लिमिटेड सत्याग्रह चल रहा है, इंडिविजुअल सत्याग्रह जब चल रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जर्मनी एक न्यू फ्रंट ओपन कर देता है एंड इट स्टार्ट्स टू अटैक रशिया और द यूएसएसआर। अब इसके ऊपर अटैक शुरू हो गया। नाउ जून 1941 में जर्मनी रशिया के ऊपर अटैक करता है एंड रशिया इज ऑल्सो ड्रैग्ड इनटू द वॉर। दिस इज द फर्स्ट अपडेट रिगार्डिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सेकेंड अपडेट ये है, जापान अटैक्ड दी पर्ल हार्बर इन दिसंबर 1941। तो यूएसए का जो एक पोर्ट एरिया है पैसिफिक ओशन में विच वॉज द पर्ल हार्बर, उस पे जापान अटैक कर देता है।
तो पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक करते हैं दिसंबर 1941 में। एंड नेक्स्ट इज जो जापान होता है वो पूरे के पूरे साउथ एशिया को ओवररन करता है, साउथ ईस्ट एशिया को, और साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ जहाँ पर ब्रिटिशर्स थे उनको रिमूव करता चलता है और साउथ ईस्ट एशिया को कैप्चर कर रहा है। एंड मार्च 1942 में फाइनली, अब इंडिया के रिगार्डिंग इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के रिगार्डिंग, इट इज़ दैट कि मार्च 1941 में रंगून विच इज़ इन म्यांमार, वहाँ पर जापान पहुँच जाता है एंड इट कैप्चर्स रंगून एंड इट ऑक्यूपाइज रंगून। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, इंडिया के अंदर है अलाइड पावर विच इज़ द ब्रिटिश एंड जापान के अंदर है एक्सिस पावर, एंड जापान अब रंगून यानी करंटली म्यांमार तक आ चुका है। नाउ जापान ऑक्यूपाइंग रंगून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बात डिसाइड होती है, कांग्रेस को ये रियलाइजेशन होता है कि जापान का जो ये एग्रेसिव एक्शन शुरू हुआ है दिसंबर 1941 से आफ्टर द पर्ल हार्बर, साउथ ईस्ट एशिया एंड नाउ रंगून, उनको डर है अब इस बात का कि जापान जो एक्सिस पावर से बिलोंग करता है कि क्या वो इंडिया में एंटर हो जाएगा। So this is what the Congress realization is, and this was in December 1941. CWC overrode Gandhi's and Nehru's objection. Gandhi wanted कि हम कोई भी अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे या हम ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे, नेहरू भी यही बात बोल रहे थे। नाउ कांग्रेस वर्किंग कमेटी इट ओवररोड गांधीज एंड नेहरूज ऑब्जेक्शन एंड इट सेड कि अगर हमको इंडिया को डिफेंड करना है तो हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। इट विल बी बेस्ड ऑन टू कंडीशंस कि आफ्टर द वॉर इंडिया इज गिवन फुल इंडिपेंडेंस, नंबर 1। सेकंड, अ सब्सटेंस ऑफ पावर, मतलब थोड़ी बहुत पावर इंडिया को इमीडिएटली ट्रांसफर की जाए एट द सेंट्रल लेवल। दिस इज व्हाट द CWC वांटेड कि यस we agree to support the British government in the Second World War because जापान अब हमारे गेट पर यानी म्यांमार रंगून तक आ चुका है। ठीक है, इंडिया को डिफेंड करने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, बट अभी भी हम सपोर्ट दो ही कंडीशंस पर करेंगे, फुल इंडिपेंडेंस एंड समथिंग ऑफ पावर विल बी ट्रांसफर्ड टू इंडिया। नाउ दिस इज द पॉइंट when महात्मा गांधी designated नेहरू एज इज चोजन सक्सेसर कि मेरे बाद जो मेरी फिलॉसफी को, मेरी आइडियोलॉजी को आगे लेकर जाएगा, ही विल बी जवाहरलाल नेहरू। दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन इंडिया। तो अगेन एक सिचुएशन आई हुई है जहाँ पर कंडीशंस सामने हैं, अगस्त ऑफर फेल हो चुका है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग in India? The British suffered reverses in Southeast Asia and Japan's threat seemed real. जापान का जो थ्रेट है वो बिल्कुल रियल दिखाई दे रहा है, ब्रिटिश को दिखाई दे रहा है कि जापान भाई डोर पर आ चुका है, बचने के लिए हमें INC इंडियन नेशनलिस्ट का साथ चाहिए। सेकेंड थिंग वॉज कि एक तरफ से जो बाकी USSR हैं, चाइना है, USA है, जो ब्रिटेन के अलाइज हैं, वो ब्रिटेन को प्रेशर कर रहे हैं कि वाई आर यू नॉट एग्रीइंग विद इंडिया एंड वाई आर यू नॉट गेटिंग देयर कोऑपरेशन। भाई उनका कोऑपरेशन लेकर आओ। ये प्रेशर सिचुएशन अब ब्रिटेन के ऊपर क्रिएट हो गई है। इस प्रेशर सिचुएशन में मार्च 1942 के अंदर एक बेस्ट चीज़ होती है विच इज़ द क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन 1942, मार्च 1942, फाइन। This Cripps mission was headed by Stafford Cripps with constitutional proposals to seek Indian support for the war. Now Stafford Cripps को भेजा गया कि आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल लेकर जाओ, इंडियंस का सपोर्ट लेकर आओ वॉर के अंदर। This is what is happening. Now who was this Stafford Cripps basically? Let us discuss one or two points regarding him. First, he was the left-wing Labourite. It means he was from the Labour Party and somehow ये जो लेबर पार्टी थी ये इंडिया के थोड़ा सा फेवर में बात करती थी। सेकेंड, he was the leader of the House of Commons, the lower house. Third, he was a member of the British War Cabinet. And fourth one, he supported Indian national movement. So he is the person who seems toward tilting a little bit towards Indian freedom or the Indian national movement. और ये थे क्रिप्स मिशन के हेड। नाउ ही इज इन इंडिया एंड वी विल बी डिस्कसिंग कि क्रिप्स मिशन ऑफ मार्च 1942। व्हाट इज हैपनिंग? एन इंडियन यूनियन विद अ डोमिनियन स्टेटस। लो जी, फिर से सेम बात।
अभी अगस्त दोपहर में हमने डोमिनियन स्टेटस को मना करा है। फिर से क्रिप्स मिशन का जो पहली स्टेटमेंट है वो यही है कि इंडियन यूनियन में को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। सेकेंड वन वॉज कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो इंडिया के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। थर्ड, members of the constituent assembly would be partly elected by the provincial assemblies through proportional representation and partly nominated by the princes। कि प्रोविंशियल असेंबली से कुछ लोग इलेक्ट किए जाएंगे एंड प्रिंसली स्टेट से कुछ लोग नॉमिनेट करे जाएंगे। अब ये नॉमिनेट वाली बात इतनी लेटर आकर भी 1942 में ये नॉमिनेट वाली बात जमती नहीं है। अगर इंडिया में एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है तो नॉमिनेट वाली बात इनको नहीं रखनी चाहिए थी। सो रिमेंबर, क्रिप्स मिशन में नंबर 1 डोमिनियन स्टेटस, फाइन। नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी असेंबली, उसके कुछ मेंबर्स होंगे पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड बाय द प्रिंसेस। फोर्थ पॉइंट वाज that the British government would accept the new constitution subject to 2 conditions। कि जो भी एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके अंदर 2 कंडीशंस होनी चाहिए, तब जाके ब्रिटिशर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे। नंबर 1, पहली बात जो थी, एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन द यूनियन कुड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। ठीक है, कि अगर कोई भी प्रोविंस, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, अगर उनमें से कोई भी ये बोलता है कि नहीं, हमको इंडियन यूनियन के साथ नहीं रहना है, हमको हमारा सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और हमें एक अपनी सेपरेट यूनियन बनानी है, तो वो अलाउ करना चाहिए। फाइन। तो क्या लगता है, अगर कोई भी अगर इंडिया इस बात को मान लेता तो इंडिया के तो बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता। सेकेंड condition was the new constitutional making body and the British government would negotiate a treaty to effect the transfer of power and to safeguard the racial and religious minorities। कि जो भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ट्रीटी साइन करेगी जिससे ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, नंबर 1, एंड रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज को सेफगार्ड करा जाएगा। दीज वर द 2 कंडीशंस ऑफ द ब्रिटिश सब्जेक्ट टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। फोर्थ पॉइंट ऑफ द क्रिप्स मिशन वॉज कि इन द मीन टाइम, जब तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इंडिया का डिफेंस जो है वो ब्रिटिश के हाथों में ही रहेगा और गवर्नर जनरल की जो पोजीशन है, जो उसकी पावर्स हैं, वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी सेम रहेंगी। गवर्नर जनरल्स पावर वुड रिमेन इंटैक्ट। एक बार क्विकली रिवाइज कर लें इस चीज़ को। क्रिप्स मिशन, फर्स्ट स्टेटमेंट डोमिनियन स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। थर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी प्रोविंशियल एंड प्रिंसेस से, इट विल बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। नेक्स्ट वन, ब्रिटिश की 2 कंडीशंस थी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए। नंबर 1, कोई भी प्रोविंस सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है, सेपरेट यूनियन चाहता है तो उसको दे दिया जाए। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी और ब्रिटिश के बीच में ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, सेफगार्ड करा जाएगा रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज को। एंड फोर्थ वन वॉज डिफेंस ऑफ इंडिया रहेगा ब्रिटिश के हाथों में और गवर्नर जनरल की जो पावर्स और पोजीशन है वो रहेगी इंटैक्ट। सो नाउ वी हैव टू कंसिडर कि अभी तक हमारे सामने अगस्त ऑफर आ चुका है, स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं और क्रिप्स मिशन आ चुका है। नाउ ये क्रिप्स मिशन जो आया है मार्च 1942 में, हाउ इज दिस क्रिप्स मिशन डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज बीइंग अर्लियर सेड। नंबर 1, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was to be solely in the Indian hands now, क्योंकि पहले बात करी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेनली इंडियंस बनाएंगे, लेकिन अब ये बात बोली गई कि सोलली इंडियंस इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का एक कंक्रीट प्लान सामने आया अंडर द क्रिप्स मिशन। थर्ड वन वॉज ऑप्शन वॉज अवेलेबल फॉर अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी प्रोविंस इंडिया यूनियन से सेपरेट हो जाती है तो इंडिया का हो जाएगा पार्टीशन। सो दिस वॉज द बेसिकली अ ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज पार्टीशन। फोर्थ पॉइंट जो डिफरेंट करता है क्रिप्स मिशन को बाकियों से, वॉज द फ्री इंडिया कुड विड्रॉ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। नाउ कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज थे जिनके ऊपर ब्रिटिश ने कभी कॉलोनी बनाई थी
पहले बनाई थी अभी बना रखी है, वो सब कॉमनवेल्थ का पार्ट थे। तो फ्री इंडिया, जब इंडिया फ्री हो जाएगा तो उस कॉमनवेल्थ से दूर हो सकता है। सो दीज वर द सम ऑफ द थिंग्स। नेक्स्ट was the Indians were allowed a large share in the administration in the interim period, कि जब तक इंडिया कंप्लीटली फ्री होता है तब तक इंडियंस को क्या किया जाएगा, दे विल बी अलाउड अ लार्ज शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरिम पीरियड, जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड है, इन दैट पीरियड इंडियंस वर अलाउड, ठीक है, अ लार्ज शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। So the Cripps mission of March 1942, if you want just a one word regarding it, that the Cripps mission of March 1942 basically failed. Okay, even after giving so many things, it basically failed. Now the question arises, why it failed, right? From the Congress side, Nehru and Maulana Azad were the official negotiators for the Congress. नाउ वी आर बेसिकली डिस्कसिंग कि कांग्रेस के क्रिप्स मिशन जो फेल हो गया था, कांग्रेस के ऑब्जेक्शंस क्या थे, व्हाट वर द कांग्रेस ऑब्जेक्शंस। नंबर 1, द ऑफर ऑफ द डोमिनियन स्टेटस इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इंडियंस वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बट द ब्रिटिशर्स दे वर ऑफरिंग ओनली द डोमिनियन स्टेटस। ये पहला क्या था, ऑब्जेक्शन था, जिस वजह से वो पास नहीं हुआ। सेकेंड वन वॉज कि प्रिंसली स्टेट्स को जो रिप्रेजेंटेशन है वो बाय नॉमिनीज होगा एंड नॉट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। थर्ड वन वॉज कि इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर का कोई भी एक प्लान अवेलेबल नहीं था एंड देयर वॉज एब्सेंस ऑफ एनी रियल शेयर इन डिफेंस, बिकॉज डिफेंस ऑफ इंडिया वॉज विद द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस वॉन्टेड अ रियल शेयर इन द डिफेंस सेक्टर एज वेल। फोर्थ वन वॉज द राइट टू द प्रोविंसेस टू secede फ्रॉम एज दिस वेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल यूनिटी, कि प्रोविंसेस अलग हो सकते हैं। ये कांग्रेस को या इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिल्कुल भी एग्रीड अपॉन नहीं था। सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स, गो थ्रू दीज पॉइंट्स कि व्हाई डिड द कांग्रेस ऑब्जेक्टेड अगेंस्ट द क्रिप्स मिशन। डोमिनियन स्टेटस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दिया था। सेकेंड वन वॉज प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड आएंगे, नॉट इलेक्टेड। थर्ड वन, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं था, डिफेंस में हमारा शेयर नहीं था। एंड फोर्थ वन वॉज नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट किसी भी प्रोविंस को ये राइट दिया जा रहा था कि वो अलग हो सकता है, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अपना अलग यूनियन को क्रिएट कर सकता है। अदर देन दिस देयर वॉज द गवर्नर जनरल सुपरमेसी रिटेन्ड, क्योंकि क्रिप्स मिशन में ये बात बोली गई थी कि गवर्नर जनरल की जो पावर्स हैं, जो उसके काम हैं, वो सब इंटैक्ट रहेंगे। So the Congress also objected to this particular point. Now the question arises, this was regarding INC objections. क्या मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन ऑफ मार्च 1942, प्लीज रिमेंबर व्हाई आई एम रिपीटिंग द डेट सो दैट यू कैन रिमेंबर देम, ओके, तो मुस्लिम लीग ने भी इसके रिगार्डिंग कुछ ऑब्जेक्शंस पुट फॉरवर्ड किए थे। नंबर 1, दे क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ अ सिंगल इंडियन यूनियन, कि एक इंडियन यूनियन बनाया जाएगा जिसमें अलग से पाकिस्तान के क्रिएशन की बात नहीं थी। सेकेंड, दे डिड नॉट लाइक द मशीनरी फॉर द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे बनेगी वैसा जो उन्होंने जो प्रोसेस बताया था क्रिप्स मिशन ने, वो उनको प्रोसेस और मशीनरी अच्छी नहीं लगी। एंड द प्रोसीजर टू डिसाइड एक्सेशन ऑफ प्रोविंसेस टू द यूनियन, वो भी उनको ठीक नहीं लगा कि किस हिसाब से प्रोविंसेस यूनियन का पार्ट बनेंगे। थर्ड वन वॉज थॉट दैट द प्रपोजल्स डिनाइड द मुस्लिम द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। कहीं ना कहीं बेसिकली अंडरस्टैंडिंग में द मुस्लिम लीग पीपल फाउंड दैट कि क्रिप्स मिशन ने अलग से पाकिस्तान की या क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं की है, तो दैट्स वाई दे ऑब्जेक्टेड द क्रिप्स मिशन। नाउ what happened is Gandhi described the scheme of the Cripps mission of the dominion status as a post dated check. गांधी बेसिकली सेड कि भाई ये चेक तो अब पोस्ट डेटेड है, अब इसका हमारे कोई भी फ़ायदा नहीं है, नाउ वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली क्रिप्स मिशन ऑफ मार्च 1942 ये भी फेल हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि स्टैफर्ड क्रिप्स आए हुए थे, नाउ ही विल बी गोइंग बैक टू हिज होम। सो स्टैफर्ड क्रिप्स रिटर्न्ड होम बिकॉज द क्रिप्स मिशन फेल्ड
एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर द क्रिप्स मिशन फेल? नाउ सिचुएशन वहीं आ गई, बिकॉज इफ यू रिमेंबर लिमिटेड सत्याग्रह इसलिए ही शुरू किया गया था कि इस डेडलॉक को रिमूव करने के लिए, बट अगेन जो प्रपोजल्स आए वो भी पसंद नहीं आए, वो भी एग्रीड अपॉन नहीं हुए. नाउ इज द टाइम फॉर अ कंप्लीट मूवमेंट. And what happened after Stafford Cripps returned home? The Quit India movement started. The Quit India movement of 1942 started after the Cripps mission failed in India. In the next lecture, we will be discussing about the Quit India movement and the further Indian freedom struggle. Till then, take care and keep learning.